علوم کے اعادہ کلی کے حصہ اسباب کے ساتھ موجود ہیں اور آج جس سبق کا ہم اعادہ کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ابتدائی طبی امداد۔ بیٹا یہ سبق ہم نے آپ کی فزیکل کلاسز کے دوران پڑھا تھا ماہ مارچ میں، تو آئیے آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 40 پہ موجود سبق ابتدائی طبی امداد۔ ابتدائی طبی امداد، آپ نے ابتدائی طبی امداد کے الفاظ سنے ہوں گے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ ابتدائی طبی امداد کسے کہتے ہیں؟ دراصل یہ وہ امداد ہے جو کسی حادثے کا شکار ہونے والے شخص کو فوری طور پر بہم پہنچائی جاتی ہے۔ اس امداد کی بدولت متاثرہ فرد کی زندگی بچانے میں مدد ملتی ہے۔ اردو میں ابتدائی طبی امداد کے الفاظ انگریزی کے لفظ فرسٹ ایڈ کے متبادل ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈبہ یا تھیلا جس میں طبی امداد کا سامان موجود ہوتا ہے اسے فرسٹ ایڈ باکس کہتے ہیں۔ اس میں پٹیاں، روئی، مختلف قسم کے مرہم، ٹنچر، زخم صاف کرنے کی ادویات موجود ہوتی ہیں۔ ان کے استعمال کا طریقہ جاننے کے لیے ابتدائی طبی امداد کی باقاعدہ تربیت حاصل کرنا پڑتی ہے۔ کسی بھی وقت ابتدائی طبی امداد کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ فیکٹریوں اور کارخانوں میں کام کرنے والوں کو کسی وقت بھی چوٹ لگ سکتی ہے۔ سڑک پر چلتے ہوئے کسی موٹر گاڑی سے ٹکر ہو سکتی ہے۔ میدان میں کھیلتے ہوئے کوئی کھلاڑی گر سکتا ہے۔ باورچی خانے میں کام کرتے ہوئے پاؤں پھسل سکتا ہے۔ ذرا سی بے احتیاطی سے کپڑوں میں آگ لگ سکتی ہے۔ بجلی کا کام کرتے ہوئے کرنٹ لگ سکتا ہے۔ صفائی کرنے کے دوران بچھو ڈنک مار سکتا ہے۔ نہر یا دریا میں نہاتے ہوئے کوئی ڈوب سکتا ہے۔ معاشرے میں رہنے والے ہر فرد کے لیے ضروری ہے کہ اسے ابتدائی طبی امداد کی چند بنیادی باتوں کا پتہ ہو تاکہ ضرورت پڑنے پر وہ متاثرہ شخص کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکے۔ مثال کے طور پر یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اگر سانپ ڈس لے تو زہر کو دل تک پہنچنے سے روکا جائے۔ زخمی جگہ سے 2 انچ اوپر زور سے رسی یا کپڑا باندھ دیں۔ جتنی جلد ممکن ہو متاثرہ فرد کو اسپتال تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص پانی میں ڈوب گیا ہو تو اسے پانی سے باہر نکال کر نبض دیکھی جائے۔ ڈوبنے والے شخص کے پیٹ میں پانی بھر جاتا ہے، اسے بروقت نکالنا ضروری ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لیے متاثرہ شخص کو الٹا لیٹا کر اس کی پیٹھ کو دبانا مناسب رہتا ہے۔ چھوٹے بچے ہر چیز کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات وہ بجلی کے پلگ میں اپنی انگلی ڈال دیتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بجلی کے ننگے تار سے ہمارا جسم چھو جاتا ہے جس سے ہمیں کرنٹ لگ جاتا ہے، یا کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص بجلی کے تار یا بجلی سے چلنے والی کسی مشین سے چمٹ کر رہ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں سب سے پہلے کام یہ کرنا چاہیے کہ اسے بجلی کے تار یا مشین سے الگ کیا جائے۔ سوئچ بند کر کے پلگ نکال دیں۔ بہتر ہے کہ مین سوئچ بند کر دیں یا فیوز نکال دیں۔ متاثرہ فرد کو ننگے ہاتھوں سے نہ چھوئیں کیونکہ اس کے جسم میں بجلی کا کرنٹ موجود ہوتا ہے۔ یہ کرنٹ چھونے والے شخص کے جسم میں منتقل ہو جاتا ہے۔ غیر موصل اشیاء ایسی اشیاء جن میں سے کرنٹ کا یا بجلی کا گزر نہ ہو سکے، مثلا لکڑی، کاغذ، پلاسٹک وغیرہ کی مدد سے متاثرہ فرد کو الگ کریں۔ یہ خیال رکھیں کہ الگ کرتے وقت جس جگہ آپ کھڑے ہوں وہ گیلی نہ ہو۔ متاثرہ شخص کے اوپر کمبل ڈال دیں۔ اس کے بعد سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آیا نظام تنفس بحال ہے۔ اگر سانس رک گئی ہے یا سست رفتار سے آ رہی ہے تو مصنوعی طور پر تنفس کا بندوبست کریں۔ باقی جسم کی نسبت سر کو نیچا رکھیں۔ متاثرہ شخص کو زیادہ ہلنے جلنے نہ دیں۔ کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر قریبی اسپتال میں پہنچانے کا بندوبست کریں۔ اگر کسی کو آگ لگ جائے تو اس پر کمبل وغیرہ پھینک کر آگ بجھانے کی کوشش کریں۔ کمرے یا سامان کو آگ لگی ہو تو ریت ڈالنے سے آگ بجھانے میں مدد ملتی ہے۔ آگ سے جھلس جانے والے حصوں پر مرہم وغیرہ لگائیں اور متاثرہ فرد کو اسپتال پہنچائیں۔ گرمیوں کے موسم میں دھوپ میں سخت کام کرنے سے لو لگ جاتی ہے۔ عام طور پر بچے یا بڑی عمر کے لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں۔ جسم میں پانی کی شدید کمی واقع ہو جاتی ہے۔ جسم کا درجہ حرارت
104 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाता है। मुतासरा फर्द बेहोश हो जाता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, खून का दबाव कम या ज़्यादा हो सकता है, सर के भारीपन की शिकायत हो सकती है, मतली आ सकती है। अगर किसी फर्द को लू लग जाए तो फौरी तौर पर धूप से साए में लेकर जाएं, धूप ठंडी जगह पर रखें, ठंडा पानी या मशरूब पिलाएं और जितनी जल्दी हो सके अस्पताल पहुंचाएं। याद रखें, इन बातों पर हम सबको अमल करना चाहिए। अगर हमारे पास कोई शख्स तिब्बी इमदाद का मुस्तहिक हो तो हमें उसकी हद्दुल वसी मदद करनी चाहिए। साथ ही हमें कोई नमा ज़ाया किए बगैर इमदादी इदारों को फ़ोन करके उन्हें मदद के लिए भी तलब करना चाहिए। अब आपने देखा बड़ी तफसील से इन्होंने आपको बताया इब्तिदाई तिब्बी इमदाद किसको कहते हैं। आपके हमारे सबके घरों में एक बॉक्स मौजूद होता है जिसको हम फर्स्ट एड बॉक्स कहते हैं। उसका काम क्या होता है कि उसमें वो चीज़ें मौजूद होती हैं जो फौरी तौर पर हमें इब्तिदाई तौर पर हमें तिब्बी इमदाद देती हैं। यानी वो मेडिकली जो भी इशू कोई हो जाए, चोट लग जाए, जख्म लग जाए, हाथ कट जाए या इसके अलावा भी हादसा घर में बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कि इन्होंने मिसालें दी, करंट का लग जाना, बावर्ची खाने में काम करते हुए पाँव का फिसल जाना या आग लग जाना, या छोटे बच्चे होते हैं वो प्लग में जो है उंगली डाल देते हैं, बाज़ लोहे की चीज़ डाल देते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के लिए जो एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं वो आपको गौर से समझने की ज़रूरत है। ना सिर्फ समझने की ज़रूरत है बेटा, आपको इससे ज़्यादा मज़ीद मालूमात हासिल करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि फौरी तौर पर अगर हम इब्तिदाई तौर पर तिब्बी इमदाद दे दें तो हम किसी बड़े नुकसान से बच सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये एक बात आपको बताती चलूँ कि जो इब्तिदाई तिब्बी इमदाद है इसका मतलब ये नहीं है कि बस आपने खुद ही डॉक्टर बनकर घर में इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दे दी। नहीं, इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दरअसल वो दौरानिया होता है, वो वक्त होता है जिस वक्त में आप घर से अस्पताल तक का सफ़र कर रहे हैं। इसमें आपको मरीज़ को सेव करना है, महफूज करना है और ज़्यादा नुकसान से बचाने की कोशिश करनी है। मिसाल के तौर पे चोट लग जाती है और खून बहना शुरू हो जाता है तो आपको क्या करना है? फौरी तौर पर सबसे पहले तो जो ज़ख़म होता है उस ज़ख़म को आपने जिल्द को कस के या तो दबा लेना है या पकड़ लेना है या पट्टी बांधनी है, ठीक है ना, ताकि वो जो जिस जगह से जिस जख्म से खून बह रहा है उसमें रुकावट आ जाए और उसका बहाव तेज़ी से होना कम हो जाए, ठीक है। और फिर जब तक आप अस्पताल लेकर जाएं उस वक्त तक ऐसा ना हो कि ज़्यादा खून बह जाए मरीज़ का, बल्कि आपने एहतियाती तदाबीर कर ली, इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दे दी और आपने उस मरीज़ को अस्पताल जाने तक के लिए महफूज कर लिया या समझ लीजिए बचा लिया। फिर इसी तरह आग लग जाए तो फौरी आपको फायर ब्रिगेड को फ़ोन नहीं करना है। सबसे पहले अगर किसी के कपड़ों में आग लग जाए तो आपने क्या करना है, कोई मोटा कपड़ा या कंबल डाल देना है ताकि वो आग पहले बुझ तो जाए। और फिर अगर आग घर में लगी हुई है या किसी एरिया में किसी जगह में लगी हुई है तो आपको वहाँ पर मिट्टी डालनी है, ठीक है बेटा, क्योंकि बाज़ औक़ात क्या होता है, बाज़ आग ऐसी होती है जो पानी से नहीं बुझती या आप पानी डालते हैं या हवा के दबाव से वो आग मज़ीद फैलती चली जाती है ना। तो पानी जिस तादाद में जिस मिकदार में डलना है ना वो फायर ब्रिगेड का ही काम है, क्योंकि उनके पास ख़ास किस्म का पाइप होता है, ख़ास प्रेशर होता है और जब वो पानी डालते हैं तो फिर वो आग फैल नहीं सकती। हम पानी किस तरह डालेंगे, बाल्टियों में या छोटे मोटे पाइप से डालेंगे ना। तो हमें पता होना चाहिए, हमें ये लाजमी पता होना चाहिए कि किस वक्त कौन सी एहतियाती तदाबीर, कौन सी इब्तिदाई तिब्बी इमदाद हमें देनी है। मिसाल के तौर पर बच्चे क्या करते हैं, घर में छोटे बच्चे होते हैं, ज़ाहिर छोटा बच्चा है, नादान है, नासमझ है, तो वो कोई चीज़ मिसाल के तौर पर कोई सिक्का ही मुंह में डाल लेते हैं तो आप उस वक्त तक इंतज़ार नहीं करेंगे कि वो सिक्का उसकी हालत में फंसा हुआ और आप टैक्सी, रिक्शा या गाड़ी निकाल रहे हैं और फिर डॉक्टर के पास जा रहे हैं। नहीं, आपको फ़ौरन पता होना चाहिए कि हमने उस बच्चे को उल्टा करना है और उसके यहाँ पर दबाव डालना है या पीठ पे उसके थपकी देनी है ताकि उसकी जो चीज़ अटकी हुई है वो फ़ौरन उल्टी के ज़रिए बाहर निकल आए। ये चंद चीज़ें, चंद एहतियात हर इंसान को पता होनी चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में जो बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो फौरी तौर पर आपको बताते हैं बेटा ऐसा कर लो। लेकिन आप चूँकि तालिबे इल्म में स्टूडेंट्स हैं तो ये एक बहुत अच्छा सबक है जो आपकी तदरीसी किताब में मौजूद है। इसके ज़रिए आप सोचिए, गौर व फिक्र कीजिए और नई नई मालूमात हासिल कीजिए और तिब्बी इमदाद के
तरीकों को जानने की कोशिश कीजिए। फिर अगर किसी को करंट लग जाए, बाज़ वक़्त आपने देखा होता है कि अगर वो स्विच बोर्ड ख़राब है या खुदा न खास्ता कहीं पर नंगी तार है, नंगी तार से क्या मुराद है कि तार छिली हुई है या कहीं से वो कवर नहीं है और वहाँ पर किसी का हाथ लग गया, या आपने अक्सर ये देखा होगा बारिश के दिनों में क्या होता है कि जब बारिश होती है तो आपको पता है हमारे यहाँ का निज़ाम थोड़ा नाकिस है और घरों पे भी और इलाके में भी अभी पिछले साल की बारिश हुई तो आपने सुनी होगी बेटा ये बात कि लोग करंट लगने से मर गए, है ना। यानी अगर उनके घर के करीब ही कोई पोल था, कोई खंबा था, या वो रास्ते में कहीं जा रहे थे और उन्होंने उस खंबे को हाथ लगा लिया तो क्या हुआ, क्योंकि वो गीले थे और बारिश का पानी खड़ा हुआ था और उस खंबे में, उस पोल में करंट आ रहा था, लिहाजा उन्होंने नुकसान उठाया। या कहीं तार गिर गए और उस पानी में करंट आ गया। इसी तरह घर में भी हो सकता है कि कोई हादसा हो जाए, कोई दीवार गीली हो और अंदर लीकेज हो रही हो तार की और वो उस दीवार में करंट आ रहा हो, या छोटे बच्चे हैं वो प्लग में उंगली डाल देते हैं, या कहीं कोई इलेक्ट्रिक का काम कर रहा हो, बिजली का कोई घर में काम कर रहा हो घर का फर्द और उसको करंट लग जाए, तो आपको क्या करना है, आपको जाकर उसको फौरन पकड़ के नहीं हटाना। सबसे पहला काम तो आपका ये होना चाहिए, या तो स्विच को बंद कर दें, या फ्यूज़ निकाल दें, या मेन स्विच बंद कर दें। आपको ये बात इस तरह अपने जहन में रखनी है कि आपने कोई दूसरी बात नहीं सोचनी। कहीं करंट लगता है तो पहला काम आपको क्या करना है, ये आपके जहन में रहना चाहिए हमेशा कि आपको बटन को बंद करना है। देन उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको गैर मौसलशुदा से मुराद होती है कि जिसमें करंट पास नहीं हो सकता, जिसमें करंट बिजली जा नहीं सकती। वो क्या है, वो कागज़ है, गत्ता है, लकड़ी है, रबड़ है, ठीक है। तो आपको इन तमाम चीज़ों की मदद से उस शख्स को वहाँ से हटाना होगा। क्यों? क्योंकि वो जो करंट जिसको लगा है उसके जिस्म में करंट आ गया है, मौजूद है। तो हो सकता है खुदा न खास्ता आपने जाकर उसको ऐसे ही छू लिया या पकड़ के हटाने की कोशिश की तो वो करंट आपको भी लग जाए। तो ये वो इब्तिदाई मराहिल हैं जिन पर आपको अच्छी तरह से, जिनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, जानना चाहिए, और अपने इर्द गिर्द एतराफ़ में कोई भी ऐसा हादसा हो तो वो उसकी मदद के लिए आप तैयार हैं। फिर जलने के लिए इन्होंने यहाँ पर बताया कि फौरी तौर पर क्या करना चाहिए। एक तो घर में सबको ये रखना चाहिए फर्स्ट एड बॉक्स में कि जल जाए तो जलने के बाद कौन सा मरहम लगाया जाए। अमूमन घरों में क्या होता है, टूथपेस्ट भी लगा लेते हैं। फिर जो जली हुई जगह होती है बेटा, उस जगह पर पानी बहुत ज़्यादा गिराना चाहिए, ठंडा पानी बहुत ज़्यादा डालना चाहिए। अब आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए कि इसमें पानी डालना है, कि इसमें टूथपेस्ट लगाना है, या बाज़ औक़ात जो है एसिड तेज़ाब से जो चीज़ जल जाती है जिस्म वगैरह, उस पर दूध भी डाला जाता है ना, क्योंकि दूध जो है वो उस तेज़ाबी मादे को ख़त्म कर देता है, उसके असर को। फिर यहाँ इन्होंने सांप या बिच्छू से काटने का भी जिक्र किया। देखिए सबसे पहले तो सांप या बिच्छू काटते हैं तो उनके काटने से क्या होता है, जहर हमारे जिस्म में उतर जाता है। अब वो जहर इन्होंने बताया कि वो आपके दिल तक ना पहुँचे। देखिए अगर वो जहर उस जगह तक पहुँच जाए, वो दिल हो या मैदा हो या जो भी चीज़ हो, तो वो आपकी जान, किसी की भी जान जाने का, अल्लाह न करे, खुदा न खास्ता, सबब बन सकता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमने वो जहर जो कि हमारे खून में शामिल हो चुका है और दौरान खून के साथ वो सफ़र कर रहा है, तो आपने क्या करना है, पहले सबसे पहले तो जिस जगह काटा गया है उससे थोड़ा ऊपर कस के कोई कपड़ा या पट्टी बांध दें। इससे क्या होता है बेटा, इससे ये होता है कि वो जहर जो है वो ऊपर तक जा नहीं सकता, या अगर वो जाता है तो उसकी रफ्तार बहुत हल्की हो जाती है और फिर आप अपने करीबी अस्पताल मरीज़ को लेके जा सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये चंद चीज़ें थी कि आपको क्या करना है। फिर इसी तरह आपको खुद भी अगर कहीं खुदा न खास्ता गिर रहे हैं तो सबसे पहले अपने सर को बचाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको पता है अगर आपके सर या दिमाग पे चोट लग जाए तो आपको नुकसान बहुत शदीद पहुंच सकता है। अक्सर ऐसा होता है सीढ़ियों से गिर रहे हैं या कहीं से पैर आपका जो है फंस गया किसी चीज़ में और आप गिर रहे हैं, या ये भी होता है कि एक्सीडेंट हो गया खुदा न खास्ता, तो आपको इन तमाम वाक़यात में क्या करना है, अपने सर को सबसे पहले बचाना है। ठीक है, और सबसे पहले तो मैं ये आपको एडवाइस, मशवरा देना चाहूँगी बेटा कि चाहे आपके इर्द गिर्द कोई हादसा हो रहा हो या खुदा न खास्ता आप किसी हादसे का शिकार हो रहे हो, अपने हवासों को काबू में रखने की ज़रूरत है। उस चीज़ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये बात, और इस पर हमेशा यकीन रखिए कि बीमारियां भी अल्लाह पाक की तरफ से आती हैं और शिफाए कामला और आजला भी अल्लाह पाक की तरफ से आते हैं ना, तो आपको अल्लाह ताला से उम्मीद अच्छी की रखनी चाहिए, क्योंकि हम जिस तरह की उम्मीद अल्लाह पाक से बांधते हैं, अल्लाह पाक हमारी दुआओं को सुनते हैं और हमारी
उस एक्सपेक्टेशन या उम्मीद को पूरा करते हैं। तो अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए। फिर यहाँ पे एक चीज़ और बताई आखिर में कि धूप के मौसम में लू लग जाना। आपने देखा होगा हीट स्ट्रोक बहुत आम हो गया है पिछले दिनों से कि जब धूप होती है तो हीट स्ट्रोक का एक नाम दे दिया जाता है। तपिश बहुत तेज़ होती है। माशाल्लाह से हमारे कराची शहर में आपने देखा होगा जगह जगह लोग पानी के कूलर भी रख देते हैं। तो सबसे पहले जो इसके बचाव का जो तरीका है, जो इब्तिदाई तिब्बी इमदाद है, वो है पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना। फिर आप अगर अपने घर से खुदा न खास्ता आपको मजबूरी है कोई और निकलना पड़ा होगा तो कोशिश करें कि आप ऐसे मौसम में बाहर ना निकलें। लेकिन कोई जिम्मेदारी है, कोई फ़र्ज़ है, कोई ज़रूरत है और निकलना ज़रूरी है तो हिचकिचाने की, शर्माने की ज़रूरत नहीं है। अपनी पानी की बोतल घर से लेके निकलें और थोड़ी थोड़ी देर से अपने उस पानी को जो आप साथ लेके निकले पीते जाएं, ताकि आप पर कोई धूप का असर, लू का असर या जो भी धूप की तमाज़त है या जो भी हीट स्ट्रोक का खुदा न खास्ता अमल है वो आप तक ना पहुँचे। आप अपने आप को पहले तो इसी तरह महफूज रखिए। लेकिन अगर कहीं कोई ऐसा मरीज़ आपको दिखता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उसको धूप से हटा के छाँव में कहीं लिटाना है और फिर उसको पानी पिलाना है। ठीक है बेटा। और फिर जब तक आप उसको अस्पताल नहीं पहुँचा रहे उस वक्त तक आपको इब्तिदाई तिब्बी इमदाद पानी देने की सूरत में करनी चाहिए। फिर क्या होता है बेटा कि आपने अक्सर देखा होगा हार्ट अटैक तो अचानक ही आता है ना, तो आपको उसके हवाले से भी पता होना चाहिए। कहते हैं कि अगर अपनी ज़बान को दांतों में ज़ोर से दबा लिया जाए, ठीक है, तो ये इब्तिदाई तिब्बी इमदाद होती है कि अगर अपनी ज़बान को ज़ोर से काट लिया जाए तो जो हार्ट अटैक हो रहा होता है, जो दिल का दौरा पड़ रहा होता है, उसमें कमी वाक़या होती है। ठीक है। तो ये चंद ऐसी बातें थी कि जो हमें सीखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। हो सकता है आप ये तमाम चीज़ें सीखें और समझें और कभी ज़िंदगी में किसी शख्स को आपकी मदद की ज़रूरत पड़े तो आपको पता हो कि इस हादसे में या इस मौके पर कौन सी तिब्बी इमदाद देनी है, कौन सा तरीका है जिसको इस्तेमाल करके आप उस शख्स को या अपने इर्द गिर्द मौजूद किसी भी फर्द को बड़े नुकसान से बचा सकते हैं। ठीक है बेटा। जैसा कि आप जानते हैं कि एहतियात इलाज से बेहतर है, तो सबसे पहले तो एहतियात कीजिए और इन तमाम चीज़ों को जिनको आपको बताया गया है एहतियात करें कि कोई घर में नंगा बिजली का तार ना हो। आपके अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो ना सिर्फ उन पर नज़र रखें बल्कि घर के नीचे के जो भी प्लग वगैरह हैं उनको इस्तेमाल ना करें और उनको बंद कर दें। इसी तरह जब आप किचन में कोई काम कर रहा हो या किचन में आपको किसी भी मकसद के लिए जाना हो तो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे किचन में जाते ही चूल्हा ना जलाएं। अक्सर क्या होता है आग इस तरह लगती है किचन में कि रात में गैस खुली रह गई और सुबह जाके जब माचिस लगाई गई है तो आग भड़क उठी। तो सबसे पहले अगर आपका किचन बंद है तो उसके दरवाजे और खिड़कियाँ खोलें। आपको फील हो रहा है गैस की बू आ रही है तो आप चूल्हे चेक करें, सारे बर्नर्स चेक करें और हवादार करते हैं, यानी खिड़कियाँ दरवाजे आपने खोल दिए। अगर खुदा न खास्ता रात की कोई ऐसी एलिमेंट था, कोई ऐसी बात थी, कहीं से गैस का कोई बर्नर खुला रह गया था तो आप उस गैस को पहले निकलने दें इजाफी, उसके बाद आप चूल्हे को जलाएं। इसी तरह रेशमी कपड़े पहन के या चूल्हे के बहुत नज़दीक खड़े होकर या स्पेशली कोई चीज़ तल रहे हों तो उन उस चीज़ को डालने में इतनी एहतियात करें कि वो छींटे उड़ के आपके हाथ को ना जला दें। पानी में अगर आप कहीं गए हैं, पिकनिक पर गए हैं या किसी स्विमिंग पूल में हैं तो भी इस बात का ख्याल रखें कि आपकी नाक कान में पानी किसी भी तरह ना जाए। और अगर कहीं ऐसी ज़रूरत आपको पेश आए किसी को तिब्बी इमदाद देने की तो आपको सबसे ज़्यादा ख्याल क्या रखना है कि अगर कोई शख्स डूब रहा है और उसको पानी से निकाला जाए सबसे पहले तो ये देखना है कि उसकी सांस चल रही है या नहीं चल रही, क्योंकि ऐसे में पानी पेट के अंदर भर जाता है तो आपको पेट से पानी निकालना है। और मसनूई तनफ़्फ़ुज़ यानी मसनूई सांस आपने देखा होगा अक्सर कि कैसे दी जाती है, उसका तरीक़ाकार भी आपका जानना बहुत ज़रूरी है। आजकल तो बेटा इंटरनेट के एक बटन के फासले पे हर तरह की दुरुस्त नॉलेज और मालूमात मौजूद है। अब ये आपका काम है कि अपने इस मौजूद सहूलत से आप फ़ायदा कैसे उठाते हैं। ठीक है। तो बजाय इसके कि आप फालतू चीज़ें, फालतू गेम्स, टीवी ड्रामों में नेट का इस्तेमाल करें, आप अपनी मालूमात को बढ़ाने में,
اپنی ایجوکیشن کو، اپنی تعلیمی سلسلے کو بڑھانے کے لیے، اپنی کہنا چاہیے ذخیرہ معلومات کو بڑھانے کے لیے بھی انٹرنیٹ کا درست استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک سبق تھا، میں سمجھتی ہوں یہ ایک بہترین سبق تھا بیٹا، اور آپ کو سمجھنا چاہیے، جاننا چاہیے، کیونکہ یہ وہ کام ہے جو دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے عملی طور پر ہمیں اختیار کرنی ہوتے ہیں۔ اس سبق کے تمام مشقی سوالات کو بھی اچھی طرح سے دیکھیے گا، سمجھیے گا، یاد کیجیے گا، کیونکہ آپ کے امتحانات بہت نزدیک ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایک نئے سبق کی خاکے کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم آپ سے فزیکل کلاسز میں ملاقات کریں۔ تو بیٹا جب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔